اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل علماء کونسل سے خطاب، کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کرنے کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش، ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اسلامی لبادے میں ملک دشمنی کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع جو گفتگو کی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج سپہ سالار کی گفتگو دنیا کے خالق و مالک کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب 9 مئی کو ملک کا بڑا سانحہ قرار دیا۔ بولے ملک میں منافرت اور تقسیم در تقسیم کی سیاست ہو رہی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے ملک کی جان معاشی مشکلات سے چھڑائی جائے۔ خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی۔ 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر لائی جائیں۔ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے غلط کام کیا ہو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، بولے موجودہ حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت بھی نہیں، 2 ماہ تک ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، میرے پاس بہت وقت ہے۔ یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، مجھ سے مذاکرات سے متعلق کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے کوئی یہ بھی کہے ہم ایک ہیں، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ مخصوص ٹولہ صرف انتشار کی بات کرتا ہے، عوام نے آپ کو ووٹ اسمبلی میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر 7 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین اور سعودی سفیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسجد نبوی کے امام فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صالح محمد البدیر صدر، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ علماء کرام سے ملاقاتیں، جامعات کا دورہ بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم کے احکامات پر توانائی کے شعبے پر نیشنل ٹاسک فورس تشکیل۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں توانائی کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تمام وزارتوں کو مل کر اصلاحات پر عمل درآمد کرانا ہے۔ معاون خصوصی محمد علی بولے ٹاسک فورس IPPs کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی، دیکھنا ہے بجلی کی پیداواری لاگت اور قیمتوں میں کیسے کمی لائی جائے۔ کسی فرد کے وعدے پر یقین کر کے جانے والے لوگ نہیں، IPPs کا معاملہ 100% حل ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے غریب عوام مزید ٹیکسز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، خبردار کیا قوم کو چوری ڈاکے پر نہ لگاؤ، فساد ہوا تو کسی سے نہیں سنبھلے گا، جاگیرداروں پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس طلب۔ وزارت توانائی کی ناقص منصوبہ بندی، خزانے کو اربوں روپے کا نقصان، مختلف گیس فیلڈ سے 200 ملین کیوبک فٹ گیس کی سپلائی کم کروا دی گئی۔ کھاد فیکٹریوں کو گیس سپلائی نہ ہونے کے انکشاف پر وزیر خزانہ برہم، گیس نہ ملنے پر وزارت صنعت $56 ملین کی یوریا کھاد درآمد کرنے پر مجبور۔ درآمدی 1 لاکھ ٹن یوریا کھاد کی قیمت $7,332 فی بوری ہوگی۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد الیکشن ترمیمی بل باقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے گزشتہ شب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بل سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا ہے کہ بانی PTI نے بالکل واضح کہا ہے کہ وہ ایک ہی شرط پر معافی مانگیں گے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے ہماری آفر ابھی بھی موجود ہے، بانی PTI کا موقف تبدیل نہیں ہوا، بس گزشتہ روز
क्लियरिटी के साथ कह दिया है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की मईशत और माशरत बर्बाद कर दी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का रद्द अमल, कहते हैं क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमला किया? सब जानते हैं नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पर नाअहल कराया गया था। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक माफी नहीं है। तुमने 2014 में जलाओ घेराव का सिलसिला शुरू किया था। ये अलग बात है कि 9 मई का वाकया किसकी सहूलतकारी पर हुआ। पहले लोगों की जहन साजी की गई, फिर तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई ने कुछ दिन पहले भी GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बानी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहती हैं जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। एक तरफ बानी पाकिस्तान का घर जलाते हो, दूसरी तरफ मशरूत माफ़ी भी मांगते हो। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने के केस में बड़ी पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रुकन पंजाब असेंबली मोहम्मद आतिफ की अबूरी जमानत कंफर्म करने का हुक्म दे दिया। सीनियर जज सफदर अली भट्टी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तोशाखाना के नए रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत भी 12 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने वकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई कमरे अदालत में पेश हुए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कहते हैं हमें अब अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी, मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकलकर दर बदर हो गईं। बरतानिया के बाद फिनलैंड समेत कई ममालिक में सियासी पनाह की कोशिश। वाज़ेह जवाब न मिलने पर अरब अमारात या सऊदी अरब में आर्जी क़याम रखने पर गौर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद फ़िलहाल भारत में ही रहेंगी। हुकूमत उन्हें मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देना चाहती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बुरेवाला में GOC मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाज़री। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए, शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अक़ीदत। मॉनसून का तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रेस कोर्स और मुल्हिका इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नाला लई में कड़ाइयों के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। आसपास की आबादी खाली करने का हुक्म। गवाल मंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश PMDH 8 में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची के इलाके जौहराबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का शहीद के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिम शहीद एहलकार शब्बीर की मोटरसाइकिल और असलहा लेकर फरार हुआ। लेन देन के मामूली तनाज़े ने 2 बच्चियों के बाप की जान ले ली। गुलशन इकबाल में मकतूल जुबैर को झगड़े के दौरान मैकेनिक ने तेज धार आले से जख्मी किया था। जुबैर नामी शहरी जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाख हो गया।
कराची के इलाके लांडी में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। जख्मी मुल्जिमान से मिलने वाला असलहा शहरी से छीना हुआ निकला। मुल्जिमान ने ज़मान टाउन में 21 जून को शहरी से लूटमार की थी। इसराइल पर ईरानी हमले का खौफ। मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हुदूद जाने से रोक दिया। नोटिम में मिस्री एयरलाइंस को तेहरान फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में परवाज़ से गुरेज की हिदायत। मिस्र के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइन से कहा है कि वो ईरानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह फ़ौजी मशक़ें बताई गई हैं। ईरान ने इत्तलात की तरदीद कर दी और वाज़ेह किया कि सिर्फ ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हुदूद से गुरेज की हिदायत जारी की गई हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया है। हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान में किया गया हमला ईरान के खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने भी हमले को ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इसराइल को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सज़ा ज़रूर देगा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल खित्ते में आग और खून की होली खेलना चाहता है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खित्ते में जारी बदअमनी का खात्मा चाहते हैं तो सहनी हुकूमत को हथियार फरोख्त करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करें। बरतानिया में आज शदीद फसादात का खदशा। रात गए से ही मुख्तलिफ सड़कों पर मशकूक अफराद की तादाद बढ़ने लगी। दाएं बाजू के 30 से ज़ायद ग्रुप्स ने आज बैक वक्त एहतजाज की कॉल दे दी। इमिग्रेशन पर काम करने वाले वकला और उन इमारतों समेत पनाह गज़ीनों को निशाना बनाने का इरादा। बरतानवी क्राउन कोर्ट ने साउथ पोर्ट हंगामों में मुलव्वस 3 अफराद को सजाएं सुना दी। 140 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। अवाम और कौमी क्रिकेटर्स अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका ने 27 गोल्ड मेडल्स के साथ अव्वल पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। मजमूई तौर पर 94 मेडल्स हासिल कर लिए। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई, 12 चांदी और 11 कांसी के साथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान। और मुल्क भर में जारी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजिस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर।